ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। At the outset, I would like to thank the organizers for inviting me and giving me this opportunity of sharing my thoughts during this webinar. I would also like to congratulate the organizers for organizing this webinar on developmental disability and mental health for parents with the focusing on autism spectrum disorder. Just now we heard about the multifarious activities of Spandan, and I'm really thankful to Dr. Praful Bravalia for remembering me on this occasion when this webinar is being organized. It's a very, very important webinar, and I'm very much sure that all those who are listening to this webinar will be greatly benefited by the wisdom of Dr. Praful Bravalia and the rich experience that he has got in this field. I'm glad to inform you, I take this opportunity of informing you that Sri Ramakrishna Ashram Rajkot is also carrying out activities for Divyang children, disabled children, through its medical center, Ma Sharda Cerebral Palsy Rehabilitation Work. And we have 30 professionals under one roof, 30 professionals, physiotherapy, occupational therapists, speech therapists, psychotherapists. They are all coming every day. Of course, for 1.5 years, almost it was closed. It was only online going on due to this pandemic. But now from yesterday, again, we have started. So a lot of activities are going on there, and 156 kids are belonging to cerebral palsy, and 191 kids are belonging to autism genetic disorder. And there are many other such special cases also. And over the period, these parents and these activities are being carried out purely with the spirit of worshipping of God in man, as preached by Sri Ramakrishna and as practically demonstrated by Swami Vivekananda in his life. Shiva Jnana Jiva Seva, worship of God in man. And therefore, we have practically very, very little charges for the treatment. Thrice in a week they are coming, and very nominal charge. And for those who are poor, it is completely free. And the parents are amazed, and they feel so blessed to come here, because other places, when they listen to the charges, they become completely disappointed because it's out of their reach. But here, they find that they are welcome here, and the best possible care is being given by the teachers here, and the feedback is excellent. The parents when they came, that time they were full of disappointment, and they were cursing themselves and cursing their children. But now there is a great change in their attitude. They take this as a blessing of God, and they are getting, and the result is also very, very good. Many children are performing very nicely after getting this treatment. So we think it is due to grace of God that we are able to carry out these activities, and the role of the professionals who are working here is no less important, apart from
our efforts and apart from our attitude of serving of God in man. Now with this, I will start the topic. I have been told to speak in Hindi so that all can understand. मुझे कहा गया है कि मैं हिंदी में बातें करूं जिससे सभी लोग और अच्छी तरह समझ सकेंगे। तो आज का टॉपिक रखा गया है इफेक्टिव पेरेंटिंग फॉर दिव्यांग चिल्ड्रन। दिव्यांग बच्चों के लिए इफेक्टिव पेरेंटिंग। तो यह जो पेरेंटिंग है ये बहुत डिफिकल्ट है, ये हमेशा डिफिकल्ट रहा है और आज के जमाने में और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो गया। आई एम टॉकिंग, मैं तो अभी बात जो कर रहा हूं वो ऑर्डिनरी चिल्ड्रन के बारे में बोल रहा हूं। ऐसे भी आप पूरे समाज में, पहले हमारे पास तो सभी लोग आते रहते हैं, आप जानते हैं सन्यासी के पास सभी अपनी अपनी मन की बातें बोलते तो सब पहले जब आते थे पेरेंट्स लोग, अभिभावक लोग, माता पिता आते थे तो उनकी एक ही कंप्लेंट रहती थी कि आजकल के बच्चे लोग तो कुछ हमको रिस्पेक्ट ही नहीं देते। हम तो अपने माँ बाप को कितना कितना रिस्पेक्ट देते थे, सुबह उठ करके पहले प्रणाम करते थे। आजकल के बच्चे लोग तो बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं देते, सम्मान कुछ नहीं देते। उसके बाद एक ऐसा समय आया जब उन्होंने कहा कि आजकल के बच्चे बात ही नहीं सुनते, बात ही नहीं सुनते, मोस्ट डिसोबीडियंट, एकदम डिसोबीडियंट है, बात नहीं सुनते। और अभी जो हमारे पास पेरेंट्स आते हैं वो कहते हैं कि हम लोग बच्चों से हमेशा डरते रहते हैं पहले बच्चे लोग माँ बाप से डरते थे, विशेष करके पिताजी से। अभी उल्टा है, माता पिता डरते हैं कि कहीं हमने डांट दिया और कोई सुसाइड कर दिया तो हमें को जेल में डालना पड़ेगा इतना पेरेंटिंग हैज बिकम सो डिफिकल्ट। इसीलिए इफेक्टिव पेरेंटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बट अभी आज जो हम कर रहे हैं ये साधारण पेरेंटिंग की बात नहीं कर रहे, साधारण पेरेंट्स की बात नहीं कर रहे। जिनके बच्चे दिव्यांग हैं उनकी बातें कर रहे हैं। तो वो तो और भी कठिन हो गया। आप समझ सकते हैं कि जो साधारण बच्चे हैं उनके माता पिता को भी बहुत कठिनाई है, कितने प्रकार की समस्याएं हैं। तो अब इनका तो क्या कहना, जो दिव्यांग बच्चे हैं। तो इसीलिए ये पेरेंटिंग जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, कैसे इफेक्टिव हो सकता है उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि आपके बच्चे ये फिजिकली हैंडीकैप नहीं है। पहले शब्द व्यवहार होता था फिजिकली हैंडीकैप्ड या मेंटली रिटार्डेड, ये शब्द व्यवहार होते थे। तो आपके बच्चे मेंटली रिटार्डेड नहीं है, फिजिकली हैंडीकैप नहीं है। और आगे बढ़ करके डिफरेंटली एबल्ड, ऐसा शब्द व्यवहार का होता था। डिफरेंटली एबल्ड है बट डिफरेंटली एबल्ड। उससे भी आगे बढ़ करके अभी जो है वो है दिव्यांग। कितना सुंदर नाम है। जैसे पहले कहा जाता था अंधे बच्चे अंधे हैं, अब उनको क्या कहा जाता है, प्रज्ञा चक्षु। भौतिक उनके चक्षु भले नहीं हो, वह प्रज्ञा चक्षु उनके पास अधिक है। क्यों? क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं तो आंखें बंद करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी प्रज्ञा उस समय जागृत हो सकती है। तो इनकी तो आंखें भगवान ने बंद कर दी, तो सब समय प्रज्ञा में रहते हैं। प्रज्ञा के द्वारा प्रज्ञा चक्षु उनके खुल गए। तो और या प्रज्ञा चक्षु नहीं भी खुले तो प्रज्ञा चक्षु खुलने की संभावना ज्यादा है, जिसमें ये चक्षु है, चर्म चक्षु है, उनके बदले जिनके प्रज्ञा चक्षु है उनको भीतर की जो दिव्यता प्रकट होने में ज्यादा सहूलियत है। उसी प्रकार से ये जो दिव्यांग बच्चे हैं, ये इनको दिव्यांग क्यों कहा गया? इनके तो अंग खराब है। उल्टा बोलना चाहिए था कि जैसे हम पहले बोलते थे, अरे इनके अंग खराब हो गए हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, एकदम खराब अंग वाला है, या उसका मस्तिष्क खराब है। पर नहीं, बात शब्द व्यवहार हुआ दिव्यांग। इनके पास दिव्य अंग है।
तो दिव्यांग कहाँ हैं? बल्कि ये तो साधारण जो बच्चे हैं उनसे भी खराब हैं, तो दिव्यांग कैसे हुआ? तो ये याद रखना पड़ेगा। वेदांत का सिद्धांत है प्रत्येक मनुष्य के भीतर में दिव्यता विराजमान है। प्रत्येक मनुष्य के भीतर में, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, बालक हो, वृद्ध हो, गरीब हो, पैसे वाला हो, उच्च वर्ण का हो, निम्न वर्ण का हो, दिव्यांग हो या फिजिकली हैंडीकैप्ड हो या अच्छा शरीर वाला हो, सुंदर शरीर वाला हो या कुरूप हो या सुंदर हो, या लंगड़ा हो, अंधा हो, बहरा हो, कोई भी व्यक्ति, प्रत्येक मनुष्य के भीतर में, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ फिजिकल डायमेंशन, प्रत्येक मनुष्य के भीतर में दिव्यता विराजमान है। यह सबसे पहली बात, सिद्धांत आपको याद रखना है। एष सर्वेषु भूतेषु गुणो आत्मान प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। प्रत्येक मनुष्य के भीतर में दिव्यता विराजमान है। वह जो आत्मा है वह विराजमान है, पर दिखता नहीं है। जब दिखता नहीं है तो उसका प्रूफ क्या है? व्हाट इज द एविडेंस? उसका सबूत क्या है? सबूत यही है, दृश्यते, किसी किसी ने उसके दर्शन किए हैं। किसने दर्शन किए हैं? दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। जो जिनकी बुद्धि अत्यंत सूक्ष्म है, उन लोगों ने उस आत्मा के दर्शन किए हैं। और ये आत्मा जो है, एवरी ह्यूमन बीइंग, सबके भीतर में है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी जेंडर और एनी एक्सटर्नल साइंस, सबके भीतर में है ये दिव्य आत्मा। और उसमें कितनी शक्ति है? अनंत शक्ति विराजमान है। ये प्रत्येक मनुष्य के भीतर में है, चाहे वो दिव्यांग बच्चा हो, चाहे साधारण बच्चा हो। परंतु दूसरी बात है, छुप करके बैठा हुआ है यह आत्मा। एष सर्वेषु भूतेषु गुणो आत्मा, छिप करके बैठा है, इसलिए हमको नजर नहीं आता है। तो किसको किसको नजर आता है? जिनका चित्त शुद्ध हो गया है, जिनका पर्दा दूर हो गया है, उनको ये नजर आता है। इसीलिए कबीर ने कहा, मोको कहां तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजोगे तो अभी मिलूंगा, पल भर की तलाश में। है भीतर में, पल भर की तलाश में मिल जाएगा। और अभी हमको नहीं मिल रहा है, क्यों? बीच में अज्ञान का पर्दा है। तो अज्ञान का पर्दा, इसीलिए कबीर ने कहा, घूंघट का पट खोल रे तो हे पिया मिलेंगे, कटु को वचन मत बोल रे तो हे पिया मिलेंगे। तुझे प्रीतम के दर्शन होंगे, आत्मा का दर्शन होगा। कैसे? घूंघट का पट खोलना पड़ेगा। और ये घूंघट का पट कैसे खुलेगा? तो स्वामी विवेकानंद ने बताया, राजयोग के ग्रंथ में पूरे वेदांत का निचोड़ करके बताया, प्रत्येक मनुष्य के भीतर में दिव्यता विराजमान है। Each soul is potentially divine, potentially divine. प्रत्येक मनुष्य के भीतर में वह दिव्यता विराजमान है, परंतु वो दिव्यता जो है वो अभी सुसुप्त अवस्था में है। उसको जागृत करना है, अभिव्यक्त करना है। तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? उस अंतर्निहित दिव्यता को अभिव्यक्त करना। Each soul is potentially divine. The goal of human life is to manifest this divinity within by controlling nature, external and internal, either by work or worship or psychic control or philosophy, by one or more or all of these, and be free. This is the whole of religion. Doctrines, dogmas, temples, churches are but secondary. प्रत्येक मनुष्य के भीतर में दिव्यता सुसुप्त से विराजमान है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है उस अंतर्निहित दिव्यता को अभिव्यक्त करना। कैसे? बाह्य प्रकृति को वशीभूत करने। वो कैसे होगा? राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ये चार योगों के समन्वय से। राजयोग मतलब ध्यान, भक्ति योग मतलब प्रार्थना, ज्ञान योग मतलब सद्ग्रंथों का अध्ययन चिंतन, और कर्म योग मतलब निस्वार्थ सेवा। यह जो मार्ग बताया प्रत्येक मनुष्य के लिए। अब ये सोचिए, यह जो बच्चा आपका है उसके भीतर भी वही आत्मा है, उसके भीतर में अनंत संभावना है। इन्फिनिट पोटेंशियल इज देयर, ओनली वी हैव टू टेप इट। बस इतना भर याद रखना है कि आपका बच्चा दिव्यांग है, वह कोई ऐसा डिफेक्ट वाला नहीं है, बल्कि उसमें जो आत्मा की जो शक्ति है
बहुत जल्दी से प्रकट हो सकती है कंपेयर टू अदर्स, इसीलिए उसका नाम दिव्यांग दिया गया। क्यों प्रकट हो सकती है? क्योंकि उसको हमेशा जो नेचर है, इट ट्राइज टू बैलेंस। मान लो किसी को अंधा बनाया तो देखिएगा वो अच्छा गाना बहुत अच्छा कर सकता है, ही इज ए गुड सिंगर। ऑल ब्लाइंड पीपल आर वेरी गुड सिंगर्स। तो ये बैलेंसिंग है। सो दिस इज बिकॉज फिजिकली हैंडीकैप्ड है, इसका मतलब है डिवाइनली मोर एबल्ड, इसलिए उसका नाम दिव्यांग है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो विश्व धर्म सभा में यही तो संदेश दिया था। श्वेता क्षेत्र उपनिषद का श्लोक सुना करके बताया, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः आये धामानि दिव्यानि तस्तु वेदाहमेतं पुरुषं महांतम आदित्य वर्णम तमस परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विदितेनाय। मैंने उस परम पुरुष को देख लिया जिसको देखने के बाद सभी प्रकार के दुखों से निवृत्ति होती है। और फिर स्वामी विवेकानंद ने कहा, हे अमेरिका वासी भाइयों बहनों, मैं भी तुमको इसी नाम से संबोधन करना चाहता हूं। क्या? अमृत से पुत्रा। तुम तो अमृत की संतान हो, शाश्वत सुख के भागीदार हो। तुम भला पापी, मनुष्य को पापी कहना ही सबसे बड़ी भूल है वेदांत के अनुसार। नहीं नहीं, तुम्हारे भीतर में तो अनंत शक्ति विराजमान है। तुम अजर अमर आत्मा हो, तुम्हारे भीतर में आत्मा की अनंत शक्ति विराजमान है। यह स्वामी विवेकानंद ने संदेश फैलाया। उन्होंने कहा, ये द चिल्ड्रन ऑफ इमॉर्टल ब्लिस, होली एंड परफेक्ट बीइंग्स, ये डिविनिटीज आर नॉट sinners, it is a sin to call a man so. It is a standing liable on human nature. Come up, O lions, and shake off the delusion that you are sheep. Your soul's immortal, spirit's free, blessed and eternal. You are not matter, you are not bodies. Matter is a servant, not ye the servant of matter. ओ शेरो, इस मिथ्या भ्रम को झटक करके फेंक दो कि तुम भेड़ हो। तुम भेड़ नहीं हो, तुम शेर हो, तुम अजर अमर आत्मा हो। तुम्हारे भीतर में आत्मा की अनंत शक्ति विराजमान है। बस यही बात हमें याद रखनी है और यही बात हमें रिपीट करनी है। इफेक्टिव पेरेंटिंग का सबसे सरलतम उपाय यही है, सुबह उठने के बाद अपने के बच्चे को बोलना है, यू आर डिवाइन। रात को सोते समय बोलना है, यू आर डिवाइन। अपने मन में याद रखना है, माई चाइल्ड इज डिवाइन। मेरा बच्चा दिव्यांग है, दिव्य है। वह साधारण नहीं है, वह असाधारण है। असाधारण बुरे अर्थ में नहीं, अच्छे अर्थ में। वो अति सामान्य है, असामान्य नहीं। वो ये अति सामान्य है। ही इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अभी हमको लगता है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैड, बाद में पता लगे नो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रेट। क्यों? उसके भीतर में वो इन्फिनिट पोटेंशियल है। यह जो स्वामी विवेकानंद कहानी कहा करते थे, वो कहानी को सुनाना है बच्चों को, और इस कहानी को खुद को भी याद रखना है। छोटी सी कहानी है। एक शेरनी जाती थी जंगल में से, और उससे भेड़ों का झुंड जा रहा था। उसको पार करने के लिए शेरनी ने छलांग लगाई। उसके पेट में छोटा सा बच्चा था, वो शेरनी के वो भेड़ों के झुंड में गिर गया। और शेरनी तो उस पार जाके मर गई, क्योंकि प्रेग्नेंट थी, उसको डिलीवरी हो गई तो वो मर गई। अब ये शेरनी का बच्चा तो रोने लग गया, क्योंकि उसकी मां मर गई थी। तो भेड़ों की माता को दया आ गई, तो उसने उसका लालन पालन शुरू किया। अब ये जो शेरनी का बच्चा था भेड़ों के साथ जाने लग गया, भेड़ों के साथ खेलने लग गया, भेड़ों के समान घास खाने लग गया, और भेड़ों के समान बैं बैं करना भी शुरू कर दिया। बहुत समय बाद वहां पर से एक बड़ा शेर आया। उसे देखा जंगल पर से कितनी सारी भेड़ें जा रही, बै 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 करते करते। आखिरी में देखा छोटा सा शेर, वो भी बै बै कर रहा है। अरे, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, शेर होकर के बै बै कर रहा है। तो नजदीक आया तो सब भेड़ें इतनी घबरा गई, बै बै करके भागने लग गई। तो छोटा शेर भी बै बै करके भागने लग गया। बड़े शेर ने पकड़ा उसको, तू कहाँ जाता है? अरे, तू तो मेरे समान शेर है, तू मुझसे क्यों डरता है? ये लो भेड़ है, इससे मुझसे डरती है। तू शेर है, तू मुझसे क्यों डरता है? छोटे शेर ने क्या कहा, रोने लग गया, बै बै बै, मैं तो शेर नहीं हूं, मैं तो भेड़ हूं। बड़े शेर ने कहा, मूर्ख, तू शेर होके अपने आप को भेड़ बोलता है। फिर भेड़ ने क्या किया, शेर ने क्या किया, छोटे शेर ने फिर रोने लग गया, बै बै बै, मैं तो भेड़ हूं। बहुत समझाया पर ये माना नहीं। तब ये बड़े शेर को बड़ा गुस्सा है, पकड़ा उसको, गले से पकड़कर घसीट करके लाया तालाब के किनारे। देख, पानी में देख, तेरी परछाई देख, मेरी परछाई देख, तेरा चेहरा मेरे समान है, शेर के समान ना भेड़ के समान। तब छोटे शेर ने देखा, हाँ,
मेरा चेहरा तो शेर के समान है। अब तो समझ गया, तो शेर है, भेड़ नहीं है। अब ये बे करना बंद कर, मेरे समान गर्ज ना कर, चल। जंगल का राजा बन गया। हाँ, जंगल का राजा बन गया। फिर उसके बाद में स्वामी विवेकानंद ने एक कहानी सुना के बताया, देखो यह जो शेर था वो पहले से शेर था, तो क्यों बे कर रहा था? क्योंकि वो भूल गया था कि मैं शेर हूं। बोले यही हमारी कहानी है। हमारे सबके भीतर में आत्मा की अनंत शक्ति विराजमान है। दिव्य आत्मा प्रत्येक मनुष्य के भीतर में है, पर हम उसको भूल गए हैं। इसीलिए हम कहते हैं मैं तो दुर्बल हूं, मैं निर्बल हूं, कैसे क्या होगा क्या होगा, मेरा बच्चा तो इस प्रकार से हैंडीकैप्ट हो गया, मेरे कब इस प्रकार के मेरे भाग्य फूटा है, क्यों भगवान ने मेरे पास ऐसा भेजा है, अरे ये तो मर जाता तो अच्छा रहता, हाय है मेरा तो भाग्य फूट गया, अरे ये तो बच्चा इतना खराब है। यह जो दिन रात जो रोना है वो तुरंत निकल जाएगा। क्यों? उसके भीतर में वही दिव्य आत्मा विराजमान है, जिसमें अनंत शक्ति विराजमान है, अनंत संभावनाएं विराजमान है, जिसके कारण वो और आगे जीवन में बहुत आगे बढ़ सकता है, बहुत आगे बढ़ सकता है। स्काई इज द लिमिट जो कहा वो लिटरली ट्रू। और मैं दो केवल स्टोरी शेयर करना चाहूंगा समय के अभाव में। ये रियल स्टोरी, अभी तक तो शेरनी की स्टोरी बताई थी वो स्वामी विवेकानंद वाली, पर ये रियल स्टोरी। एक है, एक बच्चा पैदा जब हुआ तब डॉक्टरों ने पेरेंट्स को कहा कि इस बच्चे को आप कहें तो नॉन एथिकल प्रैक्टिस है, एथिकल प्रैक्टिस तो हमको अलाउ नहीं करती है, पर यदि आप बोलेंगे तो हम उसको इंजेक्शन दे देंगे, हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बोले इस बच्चे, वो बच्चा जो पैदा होगा उसकी आंखें नहीं होगी, अंधा होगा। दूसरा, उसके जीभ में भी समस्या है। तीसरा, उसकी नाक नहीं है, नाक बिल्कुल नहीं है। चौथा, उसकी जो मस्तिष्क है, दोनों मस्तिष्क के दोनों भाग दोनों क्षतिग्रस्त हैं। इसलिए यद्यपि हमारा एथिक्स हमें अलाउ नहीं करता है, पर हम आपको यही सुझाव देंगे कि आप इसको बोलें तो हमेशा के लिए उसको शांत कर दें। अब माता पिता बेचारे रो रहे थे, क्या करें? तो उनके जो पिताजी, मतलब उनके दादा, इस बच्चे के दादा, उन्होंने कहा नहीं, हम कुछ नहीं करना चाहते, जैसा है वैसा ही अब लेंगे, ये भगवान की प्रसादी है, भगवान ने हमारे पास भेजा है, तो अवश्य उसके पीछे कुछ कारण होगा, तो हम भगवान के कार्य के भीतर नहीं आएंगे, उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। फिर जन्म हुआ, सचमुच में जैसा बोला था डॉक्टर लोगों ने, एकदम ऐसा ही। आंखें तो नहीं थी, नाक नहीं था, और जीभ में भी प्रॉब्लम, समस्या, दोनों मस्तिष्क डिफेक्टिव, मल्टीपल बहुत सारे ऑपरेशन किए गए नवजात शिशु पर, तो उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। पर जो भी थोड़ा सा नाक उन्होंने किया, थोड़ा चपटा नाक दिया, आंखें तो बंद रही, और बहुत सारे ऑपरेशन के बाद भी दोनों मस्तिष्क भी डिफेक्टिव रहे। ऐसी हालत में ये बच्चा था। अब ये जो माता पिता ये रोने लग गए कि देखिए इस प्रकार का हमको मिला, हमारे भाग्य फूटे, क्यों भगवान ने भेजा हमारे पास। तब उनके जो दादा थे इस बच्चे के, उसने समझाया, बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि देखो कोई भी फैक्ट्री में जब कोई माल माल बनता है, उसमें एक आध माल यदि डिफेक्टिव होता है, एक आध प्रोडक्ट, तो फैक्ट्री वाला जो है उसको फेंक नहीं देता, बेच तो नहीं सकता, उसको फेंक नहीं देता। वो क्या करता है, गिफ्ट देता है। किसको? उसके खुद के संबंधियों को गिफ्ट दे देता है, वो मुफ्त में भाई रखो तुम। क्यों? थोड़ा सा डिफेक्टिव है, यदि उसको बेचेंगे तो उनकी प्रेस्टीज होगी, प्रेस्टीज जाएगी, गुडविल खत्म हो जाएगा। तो ये जो डिफेक्टिव माल को किसको भेजता है? अपने संबंधियों के पास। तो दादा ने कहा उसी प्रकार से भगवान जब बना रहे थे, एक डिफेक्टिव माल निकला, तो उन्होंने सोचा मेरे संबंधियों के पास भेज दूं। हम संबंधी है भगवान के, कितनी बड़ी बात है, कितने हम लोग कितने धन्य हैं कि भगवान ने हमको चुना कि नहीं भाई ये डिफेक्टिव माल है,
यहां भेजेंगे तो उसकी ठीक ठीक केयर करेगा। इसलिए इसको भगवान की प्रसादी मानो और सभी प्रकार से उनको सांत्वना दी। और दादाजी ने बहुत उनके पूरा उसके ऊपर ध्यान दिया। अभी आप सोच करके दंग रह जाएंगे, बाद में यह बच्चा जो आगे बढ़ा, अभी तो करीब करीब 20 साल का हो गया है, उसने मैट्रिक पास किया 80% मार्क्स के साथ, अभी कॉलेज में पढ़ रहा है, इज इन कॉलेज, और हमेशा फर्स्ट क्लास आता है, बहुत बड़ा म्यूजिशियन हो गया, गीता के 700 श्लोक एकदम कंठस्थ, उपनिषद सब कंठस्थ, पतंजलि योग सूत्र के स्तोत्र सब कंठस्थ, और कितना सारा उसको कंठस्थ, और कितने सारे उसके अचीवमेंट हो गए, 100 से ज्यादा उसको अवार्ड मिल गए हैं, इंक्लूडिंग राष्ट्रपति अवार्ड, बाल श्री अवार्ड भी उसको मिला हुआ है। तो देखिए कहां से कहां पहुंच गया। बताए फिर से बताए। तो ये जो अवार्ड है, ये सब अवार्ड उसको मिले, राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला। ये आप देख सकते हैं बच्चे को कि उसका नाक चपटा है, कितना पहले जो हताशा निराशा उनके घर में थी अभी चली गई, अब उल्टा हुआ, ही इज ए ग्रेट अचीवर। उस बच्चे का नाम है उत्तम मारू। आज उत्तम मारू को बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर के हिसाब से बुलाया जाता है कई जगह पर। हमारे यहाँ तो हमारे आश्रम में कई बार उसने स्पीच दी है, इतनी बढ़िया स्पीच देता है वो बालक। तो देखिए, जो सोच रहे थे माँ बाप की हमारे लिए कर्ज है, ये ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। अभी उनको समझ में आ रहा है कि नहीं नहीं नहीं, हमारे पर प्रभु का ये प्रसादी था, प्रभु का आशीर्वाद था। और दूसरा एक केस जहां पर कि एक महिला को ऐसा बच्चा पैदा हुआ, एकदम मेंटली रिटार्डेड, बहुत रोने लग गई, डॉक्टर के पास जाते थे पर उसमें ज्यादा कोई चेंज नहीं आया बहुत। तो उसके बाद में उसने सोचा मुझे अब सुसाइड करना है और कोई उपाय नहीं है, आत्महत्या करनी है। उसी समय ऐसा इत्तेफाक ऐसा हुआ, जस्ट कोइंसिडेंस, कि डॉक्टर ने उसको फोन किया, तो उस समय रो रही थी, तो रोते रोते उसने आवाज जब दिया तो डॉक्टर समझ गया बहुत नेगेटिव थिंकिंग इसका हो रहा है, बोले तुम जल्दी से अपने बच्चे को लेकर के आओ। फिर उसने कहा कि क्यों रो रही हो, मैं समझ गया तुम्हारे में नेगेटिव थिंकिंग आ गई है, ये बच्चे के लिए रो रही हो, ठीक ऐसा करना, ये बच्चे को तुम संभाल नहीं पा रही हो, मैं ले लेता हूं, पर नेगेटिव थिंकिंग मत करो। सुसाइड बिल्कुल बहुत बड़ा पाप है, और सुसाइड से और भी रिवर्स जर्नी होगी, इसलिए बच्चे को मैं संभालूंगा। तब माँ ने कहा कि नहीं 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 नहीं, आप ये मत करिए, मैं ही उसको संभालूंगी। उसको इस प्रकार से जब थोड़ा सा थोड़ी सी उसको नैतिक हिम्मत मिली, फिर से बच्चे को लेकर गई, फिर उसका ट्रीटमेंट शुरू किया, उस इम्प्रूवमेंट भी हुआ। बाद में उसने एक संस्था में अपना योगदान दिया। आज ये महिला बहुत फेमस हो गई है, 200 बच्चों को संभाल रही है। इतना ही नहीं, ऑल इंडिया लेवल की जो कमिटी है डिसेबल्ड की, उसकी वो मेंबर बन गई है, और परिवार नाम की जो संस्था है उसके वेस्टर्न जोन की सेक्रेटरी हो गई, और 200 बच्चों को संभाल रही है उसका। और उसकी महत्वाकांक्षा है ऐसे 2000 बच्चों की मैं माँ बनूंगी। अभी 200 बच्चों की माँ बन गई, अब 2000 बच्चों की माँ बनूंगी। देखिए कहां से कहां पहुंच गई, कैसी उसकी हिम्मत और कितनी वह आगे बढ़ गई। ये उसका नाम है पूजा पटेल। तो कहने का मतलब यह है कि यदि आपके बच्चे दिव्यांग है तो आपको दुखी नहीं होना है, एक्सेप्ट एज दे आर। खलील जिब्रान ने कहा, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे हैव कम थ्रू यू बट दे बिलोंग टू गॉड। खलील जिब्रान ने कहा, आपके बच्चे आपके नहीं हैं, वो तो भगवान के हैं, भगवान ने आपको आपके पास भेजा है, फिर उसको नर्चरिंग करने के लिए। बस जिस अवस्था में है उस अवस्था में उसको एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्ट द वर्ड है, शब्द है एक्सेप्ट, उसका स्वीकार करो। भगवान के प्रसादी को स्वीकार करो, ईश्वर की प्रसादी को स्वीकार करो, और ईश्वर में यदि विश्वास नहीं करते हो तो कर्म के सिद्धांत को स्वीकार करो।
कि हमारे कर्मों के अनुसार, हमारे प्रारब्ध के अनुसार हमको जो मिला है तो ठीक है, हम इसमें से और आगे बढ़ेंगे, और जो हमको जो एक अवसर मिला है उस अवसर को, वो जो हमारी जो कैलेमिटी है उसको अवसर में हम कन्वर्ट करेंगे। दिस चैलेंज वी विल एक्सेप्ट, और जो कैलेमिटी को हम एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करेंगे। ये चैलेंज ले लें और हिम्मत पूर्वक इसका सामना करें और बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट देने का प्रयत्न करें। और हमेशा याद रखना है, बी पॉजिटिव। स्वामी विवेकानंद ने जो संदेश दिया था, वहां जहां भी जाते थे तो यही देते थे, यू आर डिवाइन, यू आर डिवाइन, यू आर डिवाइन। आप दिव्य हो, आप दिव्य हो, आप दिव्य हो। फिर एक बार अमेरिका में एक महिला ने कहा, स्वामी यू आर ट्राइंग टू हिप्नोटाइज अस, ऑलवेज टेलिंग यू आर डिवाइन, यू आर डिवाइन, यू आर डिवाइन। स्वामी जी आप हमको हिप्नोटाइज कर रहे हो कि तो आप दिव्य हो, आप दिव्य हो, आप दिव्य हो। स्वामी जी ने तुरंत उत्तर दिया, मैडम आई एम नॉट ट्राइंग टू hypnotize you, I am trying to de-hypnotize you because you are already hypnotized by thinking I am a sinner, I am a sinner, I am a sinner. I am trying to de-hypnotize you because you are divine, that is the first truth, you are divine, that is the second truth, you are divine, that is the last truth. आप दिव्य हो, ये पहली बात है। आप दिव्य हो, ये दूसरा सत्य है। आप दिव्य हो, ये अंतिम सत्य है। इससे बड़ा कोई सत्य नहीं। तो आपके बच्चे को आपको क्या करना है, सुबह सुबह से उठ करके, यू आर डिवाइन, तुम दिव्य हो, तुम्हारे भीतर में अनंत संभावना है। रात को सोते समय बच्चे, तुम्हारे में अनंत संभावना है, तुम महान हो, तुम दिव्य हो, तुम्हारे भीतर में अनंत संभावना है। ये पॉजिटिव एटीट्यूड अपना खुद के रख करके कि मेरे पास जो बच्चा भेजा है वो डिवाइन है, और डिवाइन बच्चे को हमेशा कहना है यू आर डिवाइन। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि किसी बच्चे को यदि कहा जाए 1000 बार कि तुम गधा हो तो गधा ही हो जाएगा। ये शब्दों का ऐसी असर होती है। इसलिए आपको यही कहना, उठ करके सुबह उठने के बाद अपने बच्चे को बोलना, यू आर डिवाइन, तुम दिव्यांग नहीं हो, तुम दिव्य हो। रात को सोते समय फिर बोलना, यू आर डिवाइन, तुम दिव्य हो। और दिन में जितनी बार हो सके, यू आर डिवाइन। याद रखना, आप भी डिवाइन हो, आपके बच्चे भी डिवाइन है, प्रत्येक के भीतर में वो आत्मा है, अनंत संभावना है। अब देखिए उस बच्चे में, उत्तम मारू उसका नाम है बच्चे का, कहां से कहा अनंत संभावना। अभी तो कहां पहुंचेगा पता नहीं, अभी 20 साल में नहीं हुआ तब तक नहीं इतने सारे अचीवमेंट उसने ले लिए। नाक नहीं है, 2 आंख नहीं है, जीभ में डिफेक्ट है, दोनों मस्तिष्क में डिफेक्ट है, और इतना आगे अचीवमेंट कर दिया है, आगे क्या करेगा पता नहीं। आप सोचिए, अनंत संभावना जो स्वामी जी ने कहा कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर में, आत्मा में अनंत संभावनाएं हैं, अनंत शक्ति विराजमान है, उसका प्रूफ है, एविडेंस, डायरेक्ट एविडेंस, ये उसका सबूत है। इसलिए आपके बच्चे जो भी हो, जैसा भी है, उसको एक्सेप्ट करो, होल हार्टेडली एक्सेप्ट करो। यस, हे प्रभु आपने मुझे भेजा है, मैं उसको प्रयत्न करूंगी या करूंगा, उसको बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन दे करके, बेस्ट पॉसिबल केयर दे करके मैं अपना कर्तव्य करूंगा। रिजल्ट भगवान के हाथ में। मां फलेषु कदाचन कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुः माते संगोस्तव कर्मणि। भगवत गीता में कहा, यू डू योर बेस्ट, लीव द रेस्ट टू गॉड। हम अपना स्वयं का करेंगे, और ऑलवेज रिमेंबर इट इज ए ब्लेसिंग ऑफ गॉड एंड नॉट ए कर्स ऑफ गॉड। क्यों ही भगवान ने मेरे को ऐसा भेजा, भगवान ने सचमुच में आपके भीतर कुछ स्पेशल देखा होगा, तब तो स्पेशल चाइल्ड को भेजा। ये याद रखना है, ऑलवेज रिमेंबर आई एम डिवाइन। और अपने बच्चे को रात दिन कहते रहो, तत्त्वमसि निरंजनोसि तत्व। जैसा मदालसा रानी बोलती थी बच्चे को, बचपन से ही बोलती थी, इस प्रकार से देती थी, तत्त्वमसि तत्त्वमसि, तुम वही हो, तुम दिव्य हो, तुम दिव्य हो। ये बात हमको याद रखनी है। आप देखिएगा बच्चों में बहुत परिवर्तन आएगा। ट्राई टू डू द बेस्ट पॉसिबल केयर। वो सबसे बड़ी बात है, रात दिन उसको बोलते रहना, यू आर डिवाइन, यू आर डिवाइन, यू आर डिवाइन। उससे बहुत अंतर आएगा। तो मुझे आप लोगों से बात करके बड़ा आनंद आया, और अभी समय तो पता नहीं है कि नहीं, यदि होगा तो मैं कुछ प्रश्नों के उत्तर देने का अवश्य प्रयत्न करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। The golden words that you have spoken, the wisdom that you have shared, I am sure each and every member, each and every participant is enriched
by this experience. And we look forward to much more guidance from you in future too. Now, moving on with the proceedings, I take great pleasure in inviting our sir, Dr. Praful Barwalia. Dr. And, Piyush, question answer for Swamiji. There are two persons have raised hands. Ask them, Priti Tanna. So, request them to put the questions in the question answer chat. So, should we take question answers last? No, Swamiji will be leaving. Yeah, I have some little engagement, so Yeah, better I so answer the we question. take the question answer now Okay. related to his. I request the participants to please put questions in the chat box, in the question answer box, so that we can address the issues. Dr. Preeti Tanna has some question. Yeah. Swamiji, the question is that do you have any branches in Navi Mumbai? No, we don't have any branch there in Navi Mumbai. We have a center there in Khar. Khar, that is where Ramakrishna Mission. We have got a hospital there, indoor hospital, but I don't know whether they have got that cerebral palsy unit or not. Okay. Probably not. But they have various other departments. It's an indoor hospital. That is in Khar. But Navi Mumbai, we don't have anything. Okay. Thank you, Swamiji. Other question is, how do you deal with discrimination between a normal sibling and a Divyang child? Please repeat the question. How can we deal with the discrimination which occurs between a normal child and a Divyang sibling? Yeah, it's a very important question. Very important question. Now, this is what happens, that when the other people, they start comparing your children who are Divyang with the other types of children, or sort of there are some tags also. अरे इसके तो बच्चा ऐसा हुआ, ये हुआ, तो उससे क्या है, हमारा मॉरल टूट जाता है. That's very natural, but we should not allow that. क्यों? जैसे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हमको ठीक रखना है कि our vision is very clear कि हमको जो मिला है उसको होल हार्टेडली हम एक्सेप्ट करते हैं. भगवान ने जो वर्डिक्ट दिया उसको हम एक्सेप्ट करते हैं. देयर मस्ट बी सम पर्टिकुलर पर्पस, क्योंकि हम ईश्वर में यदि विश्वास करते हैं तो ईश्वर मंगलमय है और जो भी काम करेंगे मंगलमय होगा. इट विल बी ऑलवेज ए ब्लेसिंग इन डिसगाइज. उस समय हमको पता नहीं पड़ता है, पर बाद में पता पड़ेगा. क्यों? जैसे अभी जो उत्तम मारू, उसके दादा बोलते हैं हमको उत्तम, उसका नाम बोले मैंने इसलिए दिया ना, उत्तम दिया. वैसे तो उनके फूफी को रखना चाहिए, बोले नहीं मैंने नाम दिया उत्तम, ताकि इन लोगों को सबको हमेशा उतार रहे कि ये उत्तम है. उत्तम माने बेस्ट, और उत्तम में से मुझे सर्वोत्तम बनाना है. ये फैमिली मेंबर्स को हमेशा याद रहे. तो आप भी अपने बच्चे का नाम उत्तम दे दो. बोलो कि भाई हमारा बच्चा उत्तम है. आप क्या बोलते हैं? हमारा बच्चा उत्तम है. यही हमेशा याद रखना है कि उसके भीतर में अनंत संभावना है और भगवान ने हमारे पर विशेष कृपा करके, क्योंकि आप यदि अपने आप को अनफॉर्चुनेट मानेंगे तो बाकी लोगों को बहुत मजा मिलेगा आपको चिढ़ाने में. देखो 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 ये कैसा दुर्भाग्य, इनका कैसा दुर्भाग्य, अरे क्या दुर्भाग्य हुआ, ऐसा बच्चा आया, अरे क्या तुम्हारे पे ऐसा दया खाएंगे, खास करके तुमको जलाने के लिए. उसका उत्तर देना कि भगवान ने हमको सेलेक्ट किया, ये डिफेक्टिव माल को बोले यही संभाल सकेगा, तो हमको संभाला है, क्योंकि हमारे भीतर में उन्होंने कुछ संभावना देखी कि ये बाकी जगह नहीं, बाकी कोई इसका केयर नहीं करेगा. ये महान है लोग जो इसको ऑर्डिनरी में से ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने वाले यही है. तो बोले हमको तो गौरव है कि भगवान ने हमको चुना, कि हमारे पास स्पेशल चिल्ड्रन भेजा, क्योंकि हम स्पेशल है. ये उसको जवाब उत्तर दे देना,
फिर दूसरे समय से तुम्हारे मजाक करना बंद कर देंगे. Thank you so much, Swamiji, for addressing these queries. There are certain queries in general about what are the treatment options for autism. So I think we can address that. Yeah, he can answer, or Dr. Saab can answer better than me. Very good. Very good. So I'm very happy to have shared my thoughts with you, and I'm very happy that you are doing wonderful, great work. And I'll pray to God that you continue to work for the better, for the society, for the people, for the so-called unfortunate people who are really divinely acclaimed people with Divyang children. Even the parents of Divyang children are also special because they have been chosen by the Lord to take care of the special children. They are also special. So I offer my humble pranams at the feet of the Lord, and I pray to the Lord, may Lord give us the strength to remember the blessings that we have received in disguise, and we remember the significance of this blessing, and let the Lord give us the strength to carry out our work in the spirit of worship. Thank you very much. All the best. So much, sir. Thank you so much. Sir, thank you, sir. Formally, on behalf of Spandan Mother and Child Care Hospital and Institute, MB Barwalia Foundation, Swamiji Maharaj, we are really feeling very gratitude, and we have no words to describe, and we thank you for accepting our invitation and guiding us in effective parenting. Thank you, Swamiji, and we need your blessings, and thank you so much. All the best.